न्यू चैप्टर 5 वेक्टर्स। थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स में पता है, थोड़ा बहुत 11th में पता है, तो ये इजीली जम जाएगा। स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। फिजिक्स में है आपके वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। अ क्वांटिटी विच नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called a vector quantity. For example, displacement is a vector quantity, velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. Speed direction नहीं देता, but velocity direction देती, इसलिए देखो speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Force, किस डायरेक्शन में फोर्स है रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक बार देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये देखो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, टोटल लाइन, कहां से इंफिनिटी से उधर तक इंफिनिटी तक लाइन है। If AB is a segment and its direction is shown with an arrowhead like this, as in the figure, then the directed segment AB has magnitude as well as direction. उसकी magnitude and उसकी length, ये length AB और उसकी direction है ये है, as well as direction. This is an example of a vector. The segment AB with direction from A to B is denoted by AB bar, AB के ऊपर एक लाइन, and read as AB bar, AB उसके ऊपर बार, AB bar, while direction from B to A is denoted by BA bar. यहाँ से लेंगे तो BA bar. अब we will discuss about AB bar. ये लाइन से है पूरी, टोटल लाइन AB है। इस लाइन के ऊपर एक वेक्टर लिया फ्रॉम A to B। अगर वो वेक्टर ए बी बार लिया तो A is called the initial point and B is called the terminal point. I repeat, A is called the initial point. B जहां वेक्टर टर्मिनेट होता है that is called as the terminal point. और ये सपोर्ट लाइन और लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। लाइन जो है इनफाइनाइट लाइन AB, that is called line of action of the vector. Clear? So this यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो वेक्टर ए बी बार रहेगा। A is called the initial point, B is called the terminal point, and this is line of action or line of support. In vector AB bar, the point A is called the initial point and the point B is called the terminal point. Vector AB bar में BA bar में क्या होगा, B will become the initial point and A will become the terminal point. डायरेक्शन भी उसकी ऐसी हो जाएगी BA बार में। करेक्ट है? वेरी गुड, यू गॉट इट राइट। आई रिपीट, इन वेक्टर ए बी बार A is called, the point A is called the initial point and the point B is called the terminal point. The directed line segment is a part of a line of unlimited length which is called as the line of support or the line of action of the given vector. ये डायरेक्टेड लाइन जो है that is called the line of support or the line of action of the given vector. If the initial and terminal points are not specified, then the vectors are denoted by A bar, B bar, C bar, etc. कैसे रहता है? A B बार में A initial point, B terminal point, तो that is A B bar. C D बार में C initial point, D terminal point, C D bar. बट एक सिंपल एक वेक्टर दिया ऐसा और उसमें पॉइंट A और B और दिए नहीं दिए, then we have to take that vector as small a bar.
That is what they want to say. If the initial and terminal points are not specified, then the vectors are denoted by small a bar, small b bar, small c bar, etc. Okay? Right. Then we move to the magnitude of a vector. थोड़ा बहुत आपको बता दिया वेक्टर में ये जो रहता है लेंथ, वो उसकी मैग्नीट्यूड रहती है और लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव. द मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में और साइज और लेंथ of AB bar is denoted by mod of AB bar. आज के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ AB bar यानी उसकी वेक्टर की लेंथ A to B and is denoted by mod of AB bar and is defined as the length of segment AB. That is mod of AB bar आज के बाद यानी कौन लेंथ AB. Magnitudes of vectors small a bar, small b bar, small c bar are mod of a bar, mod of b bar, mod of c bar. Sometimes in some books they write only a, b, c. If I say only a, that means we are talking about the magnitude of the vector a bar. Sometimes but notation hai, anybody can use any notation. If they say vector a, nahi lete bar, so it is same as vector a bar. But if say they only a, then this is nothing but mod of a bar. So terminology किताब हर बुक टू बुक वेरी होते रहती है, ऑथर टू ऑथर वेरी होते रहती है. अपने को उसका मीनिंग समझ लेना पड़ता है. इसमें वेक्टर ए है यानी दे आर टॉकिंग अबाउट ए बार, इसमें स्मॉल ए है यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बार. सो I repeat again, the magnitude or size or length of AB bar is denoted by mod of AB bar and is defined as the length of segment AB, that is mod of AB bar is equal to length AB. Magnitudes of vectors, यहाँ full stop हो गया. Magnitudes of vectors small a bar, small b bar and small c bar are mod of a bar, mod of b bar or mod of c bar or sometimes a, b and c. The magnitude of a vector does not depend on its direction. कुछ लेना देना नहीं है. जैसे देखो ए बी बार का मैग्नीट्यूड जैसे ये 5 यूनिट्स है तो ए बी बार का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स आएगा, तो बी ए बार का भी मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ कितनी आएगी 5 यूनिट्स ही आएगी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. Since the length is never negative, magnitude of a vector will be either greater than or equal to 0. Mod of a bar कभी भी negative नहीं आएगा, वो greater than or equal to 0 आएगा. अब 0 कब आता है? mod of a bar is equal to 0 कब आता है? If a bar is a zero vector. ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा. 0 भी आता है, but maximum times it is positive. Now types of vectors we will study 5.1.2. First one is zero vector. Name side है zero vector क्या होगा? A vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector. जहाँ चालू हुआ वही खत्म हुआ. Initial point A, terminal point A, zero vector. Initial point B, terminal point B, zero vector or a null vector. And denoted as 0 के ऊपर बार. 0 के ऊपर बार यानी it is a null vector or a zero vector. Zero vector cannot be assigned a definite direction and it has zero magnitude. बरोबर है. Zero vector की direction nobody can determine. Okay? But its magnitude is 0 or it may be regarded as having any suitable direction. The vectors A bar, B bar represent the zero vector and mod of A bar equal to 0 is equal to mod of B bar. उसका magnitude कितना रहेगा? 0. So zero vector clear हो गया. It can be taken in any suitable direction or its direction cannot be determined. And what is the magnitude of a zero vector? Always 0. Now we'll discuss a unit vector which is very important. ये बाद में बहुत काम में आएंगे अपने zero vector और unit vector. A unit vector whose magnitude is unity, that is 1 unit, is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector A bar is denoted by A cap, read as A cap or A hat.
ए के ऊपर एक हैट है तो उसको बोलते ए हैट और ए कैप, ए कैप, ए कैप, ए कैप। तो ए कैप कौन हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में? ए बार वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया। और अच्छे से समझाना है आपको तो आपको बताता हूं। ये एक वेक्टर मान लो ए बार है, ए बार, और मॉड ऑफ ए बार में भी 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। देन व्हाट इज, वेयर इज ए कैप? ए कैप विल बी अ यूनिट वेक्टर इतना, ए कैप। सो इसके मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। नेचुरली मॉड ऑफ ए कैप 1 और मॉड ऑफ ए बार 10 है। तो आप वेक्टर ए बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यू गेट अ यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर। बाद में अपने को डिस्कस करना है, बट आई होप क्लियर हो गया। अभी फिर से एक बार देखते हैं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बार इज डिनोटेड बाय ए कैप, रेड एज ए कैप और ए हैट। तो यहाँ से यहाँ तक ए बार है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ए कैप आएगा और मॉड ऑफ ए कैप विल बी नेचुरली इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। नाउ कोइनिशियल एंड कोटर्मिनस वेक्टर्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाम पे ध्यान देना। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यहाँ ये दो फिगर में ये देखो, पहली फिगर वेक्टर ए बार का इनिशियल पॉइंट ये है, वेक्टर बी बार का इनिशियल पॉइंट कौन है? ये है, करेक्ट है। ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार, दोनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम। तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। वेयर एज वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड एज कोटर्मिनस वेक्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में अपने को आएगा। टेट्राहेड्रॉन वगैरह में कंसेप्ट आता ही है, कोटर्मिनस एजेस। Whereas vectors having same terminal point are called coterminous vectors। अब देखो ये वेक्टर सी बार है, ये डी बार है, they are terminating at only same point। सो ये हो गया कोटर्मिनस वेक्टर्स और ये हो गया को इनिशियल वेक्टर्स। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम है उसको बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स। सो क्लियर हो गया। Here a bar and b bar are co-initial vectors and c bar and d bar are co-terminus vectors। ये co-terminus है और ये co-initial vectors है। कंसेप्ट क्लियर। इक्वल वेक्टर्स, नाम पता है, नाम से पता चलता। वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर्स हो गए। Two or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction। अब यहाँ पे आप देखते रहना ये फिगर में। Here a mod of a bar equal to mod of b bar, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है and their directions are same regardless of their initial point। इनिशियल पॉइंट अलग अलग है बट उनकी डायरेक्शन सेम है, टंगड़ा टंगड़ा डायरेक्शन सेम है एंड उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। गिन के देखो, परफेक्ट। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, देयरफॉर दे आर इक्वल वेक्टर्स एंड वी राइट इट एज मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार। इक्वल वेक्टर्स है। क्यों इक्वल है? उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब ये इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उनकी डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इसका अगर 10 यूनिट्स होगा तो इसका 5 यूनिट्स है, तो दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज इक्वल। अब ठीक है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। सो देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू बी बार, इक्वल वेक्टर्स हो गए। इसको देखते हैं। मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार है। मॉड ऑफ ए बार जितना है उतना ही मॉड ऑफ सी बार है अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है। इस केस में क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम है क्या? ए बार इधर जा रहा है तो सी बार ऐसा ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए बट डायरेक्शंस आर नॉट सेम, देयरफॉर एंड आल्सो मॉड ऑफ ए बार इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार।
okay, and they are not equal. Therefore vector a bar is not equal to vector c bar. I repeat, second point पे ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार सेम अगर है, सेम है, बट डायरेक्शन एक यहाँ पे एक ऊपर है, तो इवन दो देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर ए बार इज नॉट इक्वल टू सी बार. पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? एनी डाउट? नाउ विल गो टू थर्ड पॉइंट. डायरेक्शंस ऑफ ए बार और डी बार देखो, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये ए बार है उधर ही डी बार है, सेम डायरेक्शन है, बट क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? उनका मैग्नीट्यूड, उनकी लेंथ अलग अलग है. ये देखो, ये ज्यादा लेंथ का है और ये छोटी लेंथ है, इसके आधी है. तो देखो थर्ड पॉइंट, हियर डायरेक्शंस ऑफ ए बार एंड डी बार आर सेम बट मॉड ऑफ ए बार नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ डी बार, देयरफॉर ए बार नॉट इक्वल टू डी बार. ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं माने जाएंगे. तो इक्वल वेक्टर्स कौन है? दो ही है, ए बार और बी बार, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. Now point number 5, negative of a vector. If a bar is a given vector, then the negative of a bar is a vector whose magnitude is same as that of a bar. याद रखो, whose magnitude is same as that of a bar but whose direction is opposite as that of a bar. यानी ए बार उधर भाग रहा तो माइनस ए बार इस डायरेक्शन में जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगी. And it is denoted by minus of a bar. Thus if PQ bar is equal to a bar, ये देखो PQ bar अगर a bar है, then QP bar is minus a bar, there is minus of PQ bar. But उनका मैग्नीट्यूड का साइज सेम है, देखो लेंथ सेम है दोनों की. सो ये है PQ bar, ये है QP bar. तो PQ bar को a bar पकड़ा तो this is minus a bar. Thus if PQ bar is equal to a bar, then QP bar is equal to minus a bar minus of PQ bar. Here mod of PQ bar is equal to mod of minus QP bar. Same हो जाएगा. So this is negation of a vector. कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ये एक लाइन में होना चाहिए, नहीं तो ऐसे पैरेलल लाइंस में भी चल जाते हैं, इनको भी कोलिनियर मानते हैं. नहीं तो और कोलिनियर का और कंसेप्ट ये है कि ये मान लो ये लाइन है, तो यहाँ है ए बार और इसी लाइन पे बी बार है, तो दे आर कोलिनियर. देयर मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट बट एक लाइन में है ना, कोलिनियर. ये दो वेक्टर्स ए बार और बी बार ये भी कैसे रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे, बिकॉज दे आर लाई अलोंग द पैरेलल लाइंस. वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन or along the same line, or along the same line ये, and parallel to the same line है नहीं, एक लाइन यहाँ से ऐसे बड़ी निकाली, तो देखो ये a बार इसको पैरेलल है, b बार भी इसको पैरेलल है, that means a bar and b bar are parallel to each other and therefore they are called as collinear vectors. फिर से एक बार, vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line or along the same line. Point number 7, free vectors. If a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called a free vector. In other words, the initial point of free vector can be taken anywhere in the space keeping magnitude and the direction same. अब फ्री वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ये ड्राइंग में फ्री वेक्टर्स को. उनका इनिशियल पॉइंट चेंज हो सकता है, टर्मिनल पॉइंट चेंज होगा, बट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो इसमें देखो अभी ए बार को सिर्फ डिस्कस करो कहाँ है, तो ये ए बार है, ये भी ए बार है, देखो ये इसको पैरेलल है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. ये ए बार है अगेन, ये भी ए बार है, ये भी ए बार है. तो इनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन. फ्री वेक्टर्स बोलते हैं. अब बी बार भी देखो, ये बी बार है, उसको पैरेलल ये भी बी बार है, इसको पैरेलल बी बार है, इसको पैरेलल बी बार है, इसको भी पैरेलल बी बार है, और दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स.
लेकिन किसने बोला सर ये देखो मैं ऐसा बी बार देता हूं, ये सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। या मैग्नीट्यूड में भी सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। अगर किसने बोला सर ओके ये देखो मैं ये बी बार बोलता हूँ, इसको अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है। वहां बिकॉज ये अगर बी बार है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड आधा हो गया, फ्री वेक्टर्स माना नहीं जा रहे। करेक्ट है? तो ये ड्राइंग हमारे को क्लियर हो गया। फिर से एक बार, ये ए बार 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, और डायरेक्शन भी सबकी सेम है, परफेक्ट गिन के 5 यूनिट्स। ए बार पैरेलल टू ए बार, पैरेलल टू ए बार, पैरेलल टू ए बार, पैरेलल टू ए बार, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। बी बार चलते हैं, बी बार उसको पैरेलल ये बी बार, मैग्नीट्यूड भी सेम, इसको पैरेलल ये बी बार, मैग्नीट्यूड भी सेम, इसको पैरेलल ये बी बार, मैग्नीट्यूड भी सेम, इसको पैरेलल ये बी बार, मैग्नीट्यूड भी सेम। यानी in other words the initial point of free vector can be taken anywhere in the space keeping magnitude and direction same are called as free vectors. Any doubt? फिर से एक बार, if a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called as free vector. That's all my friends.